So first we do the two questions of the differentiation and then we will do the integration. Okay. Right. The question was position change with time as x is equal to minus t square by 3 plus 16t plus 3. The question asked is time taken by body to come to rest. Time taken by body to come to rest means velocity is 0. So first we need to find out the velocity. So v is equal to dx by dt. So इसका differentiation करेंगे, that is इसका differentiation how much is that? minus 1 by 3 तो constant हो गया, then 2t 2 minus 1 and इसका differentiation 16. So this is v is equal to minus 2t by 3 plus 16, and according to question v is equal to 0. So minus 2t by 3 plus 16 is equal to 0 and t is equal to 24 seconds. Is it clear? An object is moving with the relation x is equal to bt cube minus ct. B and c are two constants and some other conditions are given. At t is equal to 2, acceleration is 24, and at the same time t is equal to 2, velocity is how much? 8 meter per second, but 8 meter per second in negative direction, right? So we have to find the time when object return to origin. We have to find the time, find t when object return to origin means x become 0, when x is equal to 0. So first we have to find v by differentiation, then we have to find acceleration. तो पहले velocity find out करते हैं and then acceleration find out करते हैं, right? So v is equal to dx by dt, right? इसका differentiation करेंगे तो कितना आएगा? b is a constant, तो v is equal to b into 3t 3 minus 1 minus c. So that is v is equal to 3bt square minus c. Let's say this is equation 1. Now we have to find out the acceleration. So acceleration is dv by dt means differentiation of this. तो इसका differentiation कितना हुआ? 3bt square का 3b is constant into 2t 2 minus 1 and c being constant तो 0. So a is equal to 6bt, right? अब हम condition apply कर देंगे. At t is equal to 2, a is equal to how much? 24. तो 24 is equal to 6b into 2. So this will result in how much? b is equal to 2. b is equal to 2 आ गया. Let's put the value in equation 1 from equation 1. इस equation में ये value put करते हैं और हमें क्या दिया हुआ है? b is equal to -8. कब? जब टाइम 2 है तो v की जगह -8 is equal to 3, b की जगह 2, टाइम की जगह 2 स्क्वायर माइनस c. तो c is equal to 32. Now we get the value of b and c. b भी आ गया हमारे पास, c भी आ गया. अब हमको क्या करना है? x is equal to 0 करना है. So इस इक्वेशन में b c की वैल्यू डाल देते हैं, राइट? फ्रॉम इक्वेशन x is equal to bt cube minus ct.
x is 0, b is 2, 2t cube minus c is 32t. इसको सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 16 and t is equal to 4. So at time 4 second, the object will be back to its position. Now we go for integration. Integration by the name is to integrate. To integrate. इंटीग्रेट करना, राइट? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, बहुत सारी छोटी 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 क्वांटिटीज को कलेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. बाकी का इंटीग्रेशन में मैं तब बताऊंगा जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँगा. अभी फॉर द टाइम बिंग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सिर्फ वो सीखना है, ठीक है? हम जो अभी फिजिक्स में करेंगे मैथ्स में उससे थोड़ा डिफरेंट होता है. There are two type of integration, one is called indefinite and another is called definite. तो हम जो पढ़ते हैं वो definite integration पढ़ते हैं, right? तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो definite integrations के लिए है, so nobody take it otherwise कि तो indefinite something different होता है, right? So let's note the formulas as we did in differentiation. तो formulae note करते हैं, करेक्ट? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसको हम ऑपरेटर भी बोलते हैं. जैसे हम एडिशन के लिए प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई ऐसे सिंबल यूज करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन के लिए ये ऐसा सिंबल होता है. दिस इज व्हाट इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, राइट? वही कुछ सिंपल फॉर्मूले. इंटीग्रेशन ऑफ dx, that is x, and in all formulas k is what? Constant. And integration of k dx, that k will be out of integration, that is integration of dx, so this will become kx, sorry, this will become kx. So that is what integration of k dx. Then x to the power n dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1. Here n must not be equal to minus 1. n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए. अगर n की वैल्यू माइनस 1 होगी तो डिफरेंट फॉर्मूला है, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं. ओके? Similarly, if we go for kx to the power n dx, we will get kx to the power n plus 1 upon n plus 1. Then sin x dx is minus cos x, and cos x dx is and cos x dx is sin x. राइट? जिस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिवर्स प्रोसेस है. रिवर्स प्रोसेस कैसे? लाइक इफ आई सब्ट्रैक्ट 10, आई हैव अ वैल्यू x, आई सब्ट्रैक्ट 10, देन आई गेट x minus 10, and if I add plus 10, so I will be back where I was. So addition and subtraction are the opposite term. Similarly, differentiation and integration are opposite to each other. अगर आप किसी भी क्वांटिटी को पहले डिफरेंशिएट करें और फिर इंटीग्रेट कर दे तो वापस वहीं आ जाएंगे, या पहले इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट कर दे तो वापस वहीं आ जाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. इफ यू विल ऑब्जर्व, डिफरेंशिएशन में x की पावर एक कम हो जाती थी, यहां पे एक पावर कम हो जाती थी, लेकिन इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है. जब हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो x रह जाता है, लेकिन जब हम x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्यूब बन जाता है. ओके? ये फॉर्मूले आप नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं.
अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप उसको देख के समझना हम इंटीग्रेशन कैसे कैसे करते हैं. We have velocity given as 3t square minus 6t plus 8. The velocity of object is changing with time by the relation v is equal to 3t square minus 6t plus 8. We have to find displacement. Find displacement. अब डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे नहीं होता, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट होता है किसी टाइम इंटरवल के लिए. मैं 2 घंटे चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या 1 घंटे चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 30 मिनट चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो हमें क्या होगा, एक लिमिट दी हुई होगी, एक टाइम इंटरवल दिया होगा, या किसी भी चीज में एक लोअर और एक हायर वैल्यू दी हुई होगी हमेशा. सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर t is equal to 2 to t is equal to 4 सेकेंड. राइट, व्हाट डज इट मीन? 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड कंप्लीट होने तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ओके, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशियल. वी नो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. वी नो v इज इक्वल टू ds बाई डी टी. राइट, हमको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज गिवन टू अस इज वेलोसिटी. सो ds इज इक्वल टू v dt. दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप. हमको जो कैलकुलेट करना है उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और बाकी सब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा. आफ्टर दैट प्लेस द वैल्यू ऑफ v. v की ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो. कितना आया? 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 एंड देन dt. ओके, नाउ इस dt को मल्टीप्लाई करो. तो ds इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt minus 6t dt plus 8 dt. Right? So you get this equation. Once you get this equation, now we will do the integration. अब हम लिखेंगे on integrating and दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं. On integrating both side, तो यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करते हैं. 3t स्क्वायर डी टी माइनस 6t डी टी प्लस 8 डी टी. नाउ व्हाट इज देयर? वी आर रेडी फॉर द इंटीग्रेशन. अब हमें इंटीग्रेशन करना है, बट अभी यहां पर चीज कंप्लीट नहीं हुई. अभी हमें एक और वैल्यू दी हुई है, दैट इज टाइम. व्हाट इज द टाइम इंटरवल? तो हमको वो टाइम इंटरवल भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा. कैसे शो करेंगे? हम यहाँ पर इसके नीचे ये जो इंटीग्रेशन का ये है, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं. यानी यहाँ पर लोअर लिमिट प्लेस करेंगे. व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ टाइम? 2. एंड व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ टाइम? 4. सो वी हैव टू इंटीग्रेट 2 to 4. राइट, स्टिल वी आर नॉट कंप्लीट. अभी भी हम कंप्लीट नहीं है. एट टाइम t इज इक्वल टू 2 कुछ तो पोजीशन रही होगी, और हमें कब निकालनी है? 2 से लेके 4 तक. तो 2 पे पोजीशन क्या थी वो हमें यहां लिखना पड़ेगा. राइट, तो हम ये मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 पे वो ओरिजिन पे था, क्योंकि हम ओरिजिन कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन. हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है एट 2 सेकेंड वो 10 मीटर पे था, तो 4 सेकेंड पे कहाँ होगा? तो हमें 2 सेकेंड को 10 मीटर रखना पड़ेगा. बट अगर हमें दिया है 2 से 4 तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम अपनी कन्वीनियंस से मान लेंगे कि 2 सेकेंड पे वो ओरिजिन पे था. तो
at 2 second it was at origin and then say it has got the displacement s, right? यहाँ तक आप लोग देखो, आपको समझ में आया क्या? फिर मैं आगे करूँगा क्योंकि थोड़ा लंबे स्टेप्स हैं, तो एक बार पहले इतना देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं. ओके, एंड यू मे नोट डाउन साइमल्टेनियसली दिस वन. सो नाउ अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज प्लेस करने हैं. इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज यहाँ पे प्लेस करेंगे. लाइक ये फॉर्मूला, इसके कंपैरेटिव फॉर्मूला ये है. ओके, तो इस तरह से आप फॉर्मूले देख के उसको प्लेस कर लो, राइट? तो आई एम प्लेसिंग हियर. आप लोग फॉर्मूला देख लेना, मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं तो मुझे मालूम है. ओके, राइट. व्हाट वाज देयर? dx. dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x. सो दिस विल बी s इज इक्वल टू 3t square. So that is 3t 2 plus 1 upon 2 plus 1, right? Minus 6t. तो minus 6t 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 8t plus 8t, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, plus 8 dt, तो ये हो जाएगा 8t. ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन करके आया फॉर्मूले यूज करके. बट स्टिल द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड. अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ. ओके, अभी हमें क्या करना है? इनका भी तो देखना है, इनका क्या होना है. ये जो है 2 4 0 s, इनका भी तो कुछ करना है ना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे बार्स यूज करते हैं जिनको हम यूजुअली मॉड का साइन बोलते हैं, बट यहाँ पर ये मॉड नहीं है. ये मॉड नहीं है, ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने इंटीग्रेट तो कर लिया लेकिन लिमिट्स नहीं रखी. तो अभी हमको लिमिट्स रखना बाकी है. तो हमारी ये जो वैल्यूज है इनको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं. 0 s 2 4 2 4 एंड 2 4. नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. 3 कैंसिल, तो दिस इज t क्यूब 2 to 4 माइनस ये 2 3 जा 6, 3 को बाहर ले लो, t स्क्वायर 2 to 4 एंड प्लस 8, t को बाहर ले लो 2 to 4. ये हमारा पुराना चल रहा था. ठीक है, ओके. सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट स्टेप. अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इन लिमिट्स को प्लेस करना है. इन लिमिट्स को प्लेस करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक चीज याद रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे? पहले s की जगह इस s की जगह ये s रखना है, तो s रखा, माइनस फिर इस s की जगह ये 0 रखना है, तो 0. ओके, इज इक्वल टू, अब इस t की जगह ये 4 रखेंगे, 4 क्यूब माइनस, नाउ इस t की जगह 2 रखेंगे, तो 2 क्यूब माइनस 3. अब t की जगह हमें क्या रखना है? 4, तो 4 स्क्वायर माइनस फिर t की जगह क्या रखना है? 2 स्क्वायर प्लस 8. अगेन t की जगह 4 माइनस 2. अब इसको सॉल्व करना है. सिंपल मैथमेटिक बचा 4 4 16 4 64 माइनस 8 माइनस 3 16 माइनस 4 प्लस 8 2. So that is 64 minus 8 is 56 minus 36 plus 16, that is how much? 36. So we get the answer as 36.
इधर ये फॉर्मूलाज को देखो, dx become x, okay, dx become x, dx is what? Look, what is integration? मैं वो बताता हूं आपको। ये एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए dx के बारे में बात की थी, याद है? Instantaneous velocity means for a very small time interval, for a very small time interval displacement भी बहुत कम होगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, फिर मैं बनाऊंगा और फिर छोटा करूँगा। So this is what is ds, this is what is ds, ये ds है, right? Okay, हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मॉल डिस्टेंसेस लिए और इंटीग्रेशन से इन सबको ऐड किया। इंटीग्रेशन मतलब इन सारे ds को ऐड कर देना। यू गॉट माई पॉइंट? तो सारे जो ds है, छोटे 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 छोटे, पूरा रास्ता ले लो, उस पूरे रास्ते में छोटे छोटे बहुत सारे इंटरवल्स है, कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। उन सबको हमने ऐड किया, तो उन सबको ऐड करके क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट ही आएगा ना? ठीक है स्नेहा? तो अकॉर्डिंगली जब हमने dx को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x आ गया, राइट? k वाज ए कांस्टेंट एंड अगेन dx को इंटीग्रेट किया तो kx आ गया, राइट? अब ये तो x की पावर n है, जब dx का इंटीग्रेशन होगा तो एक और पावर ऐड हो जाएगी ना? dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो n पावर तो ऑलरेडी थी, एक और पावर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? n+1। तो इसलिए हर बार क्या हो रहा है, जैसे ही हम dx हटाते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है। और इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है, इंटीग्रेशन करने का मतलब हमको जो dx dt ds dv जो भी होगा उसको हटाना है और उसकी जगह एक नई वैल्यू को लाना है। दिस इज व्हाट वी डिड हियर, राइट? अब इधर देखो, व्हाट वी डिड हियर, यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक, ये पोर्शन लो, ये वाला पोर्शन लो और ये वाला पोर्शन लो, राइट? अभी यहां पे dt था 3t² था, बट यहां पे ये क्यूब हो गया ना? तो dt ने अपना एक पावर ऐड कर दिया यहां पे। तो सिमिलरली यहां पे भी उसने अपना एक पावर ऐड किया, यहां पे भी 8 था, t तो था ही नहीं, तो अपना एक पावर ऐड किया तो कितना आ गया? 8t आ गया ना? तो सब जगह सिमिलर हो रहा है, यहां पे भी वही है, यहां भी वही है, और यहां भी वही है, यहां भी वही है, सब जगह सेम काम हो रहा है। जैसे ही हम ds dt dv du इनको हटाएंगे तो एक पावर बढ़ेगा, ओके? और हर जगह बढ़ेगा। ध्यान रखना, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो एक पावर एक्स्ट्रा होना चाहिए, करेक्ट? ठीक है। सो नाउ अभी मैं आगे चलता हूं, राइट? ये तो हो गया ना अपना, कितना आया? 36, राइट? The question is acceleration of object change with time as at. Acceleration of object change with time as at. If initial velocity is u, find velocity at time t.
So this is the velocity at t is equal to 0. Initial velocity means that ना, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ही यही होता है, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तो अब हमारा टाइम चेंज हो रहा है 0 से लेके t तक और वेलोसिटी चेंज हो रही है लेट फाइनल वेलोसिटी इज v. फाइनल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट टाइम t, ये हमने मान लिया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. We know that acceleration is equal to dv by dt. What is the acceleration given to us? At is equal to dv by dt. The acceleration is given as at. So now dv is equal to at dt. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो dv इज इक्वल टू व्हाट? at dt. ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है. राइट. अब इस साइड dv है, dv मीन्स स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dt मीन्स स्मॉल चेंज इन टाइम. तो वो जो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है उसको हमें ऐड अप करना है और स्मॉल चेंज इन टाइम को ऐड करना है. तो जो चेंज इन टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से t तक. तो 0 to t. और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है u से v तक. तो वेलोसिटी को चेंज करेंगे u to v. राइट. दिस इज व्हाट हमारा जो बेसिक ग्राउंड तैयार हो गया. अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, सिर्फ हमारा ग्राउंड रेडी हो गया. तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v और इधर a तो कांस्टेंट है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. दिस a इज कांस्टेंट, ये हमको क्वेश्चन में दिया है. तो a एंड देन t dt. तो क्या होगा? t 1 + 1 अपॉन 1 + 1. करेक्ट. अब लिमिट वेलोसिटी की कहां से कहां तक? u to v. और टाइम की लिमिट 0 to t. सो दिस इज व्हाट? v, u to v, एंड दिस इज a by 2. 1 + 1 is 2. t² 0 to t. अब हम ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, लिमिट प्लेस कर देते हैं. तो ये क्या होगा? लिमिट प्लेस किया तो फर्स्ट v की जगह v माइनस v की जगह u इज इक्वल टू a by 2 एंड t की जगह t और t की जगह फिर 0. तो 0². तो ये आ गया v माइनस u इज इक्वल टू a by 2 t². दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस हाफ a t². So that is the velocity at time t. This is how we get by the integration. किस तरह से हमें इंटीग्रेशन से मिलता है. ओके एक बार ये नोट करो, फिर इसी क्वेश्चन में कुछ बताऊंगा आपको. राइट. ये इक्वेशन तुम्हारे पास लिखा हुआ है. ओके मैं स्क्रीन चेंज करूंगा एंड देन आई विल टेल यू समथिंग. What was given to us in the question is acceleration is equal to at. और मुझे निकालना क्या है? v. v निकालना है. मेरे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at. इसमें ये एक्सेलरेशन होता है. तो मैं एक्सेलरेशन की जगह अगर ये रख दूं तो at इंटू टी, दिस विल कम एज v इज इक्वल टू u प्लस at². जबकि हमारा जो आंसर आया था वो आया था v इज इक्वल टू u प्लस हाफ at².
तो हमको ये भी समझना है कब क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी समझना है। ये गलत क्यों है, ठीक है, ये गलत क्यों है आप बताओ। ये गलत है, ये सही है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं बोल रहा हूं ये सही है, तो मान लो ये सही है, ये गलत है। सो नाउ यू फाइंड आउट ये गलत क्यों है। ये गलत इसलिए है क्योंकि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट? अभी टाइम की वैल्यू 2 रखो तो 2a हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 3 रखो तो 3a हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 4 रखो तो 4a हो जाएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम ये इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते, करेक्ट। तो इसलिए ये इक्वेशन यूज करके हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी कि कहां पर क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है, राइट। देखो v इज इक्वल टू s बाई टी और s इज इक्वल टू वी टी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन की। अब आप क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है? आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आइडिया मिलेगा, या तो लिखा होगा वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही होगी, कुछ भी आपको क्लू मिलेगा क्वेश्चन में। देन आई एम राइटिंग ओनली वन इक्वेशन, बाकी अंडरस्टूड है तीनों इक्वेशन। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो ये दोनों आप इन मोशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो व्हाट अबाउट ऑल अदर कैलकुलस, जितने भी हैं वो सब कैलकुलस से होंगे। एंड कैलकुलस इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, यानी ये प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी। कैलकुलस से सारे मोशन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलस इज ए यूनिवर्सल मेथड। कैलकुलस मींस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूनिवर्सल मेथड है। अगर आपको क्वेश्चन में जरा सा भी कहीं पे डाउट हो तो कैलकुलस यूज करो, क्वेश्चन का भी गलत नहीं होगा। हाँ, इफ यू आर श्योर कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो इक्वेशन यूज कर लो, इफ यू आर नॉट श्योर तो कैलकुलस यूज करो, अपने आप हो जाएगा, राइट। नाउ आई एम गिविंग ए क्वेश्चन, ओके, उसको सॉल्व करो आप, ओके। चलो मैं करता हूं। व्हाट इज गिवन टू अस दैट velocity of an object change with time as kt, where k is a constant, and we have to find the displacement for time interval, 0 to 3 second, right? And further what is given to us, initial velocity is 0 because the question may given it is at rest. So I will do it by integration, okay. So we know v is equal to ds by dt. So ds is equal to v dt. So ds is equal to kt dt. Now on integrating, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन, kt dt का इंटीग्रेशन, टाइम 0 to 3, और हम वही अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं 0 पे ये ओरिजिन पे था और 3 सेकेंड पे ये s हो गया। ds का इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करेंगे तो s 0 to s, एंड kt dt का इंटीग्रेशन k
t 1 plus 1 upon 1 plus 1 0 to 3. Okay, so this is if I place the limit s minus 0 upper limit minus lower limit k, this is t square, ये 2 बाहर आ गया, और t square, so that is 3 square minus 0 square, so s is equal to 9 by 2k. That is our answer. Okay, I will take a minute to solve it by the uniform acceleration method. हम uniform acceleration method से solve कर सकते हैं. कैसे? We know v is equal to u plus at. पहली चीज हमको ये पता है v is linearly changing with time. तो if v is linearly changing with time, so that is uniform acceleration, right? ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मोशन कैसा है. ओके, ये भी अभी हमें पढ़ना है. सो नाउ हमें क्या दिया हुआ है? v इज इक्वल टू के टी, u इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी. तो इससे हमारे पास a इज इक्वल टू के आ गया, टी टी कैंसिल, तो a इज इक्वल टू के आ गया. अब हम इसको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू के इंटू 3 स्क्वायर. तो दैट इज हाउ मच? 9/2k. तो अगर आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाओ तो कैसे भी कर लो, और अगर नहीं कर पाओ तो क्या करना है? तो हमको क्या करना है? कैलकुलस यूज करना है, अगर हम क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी. जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में था, याद है? कहाँ गया? ये याद है? अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हम इक्वेशन यूज करते तो क्वेश्चन गलत हो जाता. ओके, आज इतना ही करते हैं. अभी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे, कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इससे हायर लेवल. तो आई विल एडवाइज यू एक बार पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना.